morning, student. I am your social studies teacher. Your book is Let's Learn Social Studies, class 8th. The whole syllabus of social studies is divided into geography, history, civics, as you have already studied in class 6th and 7th. Okay, so first we started with geography. The chapter 1 of geography, resources. So let's start. Chapter 1, resources. Since the dawn of civilization, man is dependent upon nature for his survival. He has struggled hard and extracted materials from the nature, which could be processed into products. With the passage of time, humans has made unbelievable progress on the technological front and thus on economic front as well. This has helped him to raise their standard of living. All this has been possible due to the availability of natural resources. The term resources has been derived from the Latin word resurge, which means to rise again. It also has close link with old French word resolve, that means to relieve. Resource which occurs naturally without the help of human are natural resources. The term resources usually refers to natural substances which occur in the air, in water, or on the land. These natural resources include raw material, fuel and minerals, rain, wind, sunlight, soil, and vegetation. Sometimes widen the scope of this term and include human resources as well as machinery made by him and capital raised by him. In this way, natural resources become resource when we start using them to fulfill our needs. Thus, we can say that a resource is anything that has some value or use for humans. तो हम लोगों ने क्या समझा रिसोर्स की मीनिंग। जब से ह्यूमन बींग्स ने सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब जब से हम लोगों ने रहना, साथ में सरवाइव करना, कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करी, एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में रहना शुरू करा, तब से हम लोग ने क्या करा, ह्यूमंस ने स्ट्रगल करा कि वो किसी तरह से नेचर से बहुत सारे मटेरियल एक्सट्रैक्ट करे। और जैसे कि उसको सबसे पहले खाना था तो वो जानवरों को मारता था खाना खाने के लिए, फिर पेड़ काटता था आग जलाने के लिए, फिर आप लोगों ने पढ़ा कि व्हील बनाने के लिए पेड़ काटा और उससे व्हील बनाई लकड़ी सा यूज़ करके। तो हर चीज़ जो भी उसको चाहिए था, अब उसको कहाँ से मिली, नेचर से मिली। ठीक है, तो नेचर खुद ही एक रिसोर्स देता है ह्यूमन को, और उस नेचर के मटेरियल को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, मशीन बनाते हैं और दूसरी कैपिटल चीज़ें बनाते हैं, वो क्या होती हैं, वो मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं। तो रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, एक मैन मेड रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको नेचर का यूज़ करके हम अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं वो मैन मेड रिसोर्सेज होती हैं। अब रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज कोई भी थिंग है जिसकी कोई वैल्यू हो, वैल्यू क्या हो, ह्यूमन के यूज़ के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की कितनी तरह की वैल्यू हो सकती है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इथिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, अ रिसोर्स हैज़ अ वैल्यू अटैच्ड टू इट which can be different types such as legal value, aesthetic value, ethical value and economic value. Legal value of a resource means the importance given to it by government. Various acts and regulations related to clean air, water and pollution free environment have a legal value. For example, the clean air related laws required that all vehicles must have a pollution free certificates. Thus, these laws give a legal value to air. Similarly, legal value is attached to other resources such as coal, water, vegetation, wildlife, etc. लीगल वैल्यू क्या है, जो भी हम लॉज एंड रूल्स बनाते हैं कि जिसके अप्लीकेबल एप्लीकेशन के बाद क्या है उसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब कि अगर हमारा एक लॉ है कि जो व्हीकल्स चलती हैं उनके पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए उनको, तो ये क्या है, एयर को एक लीगल वैल्यू देती है कि एयर को प्योरीफाई करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, लीगल वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है, scenic beauty of sea, lakes, mountain, national park, etc. has aesthetic value.
इम्पॉर्टेंस अटैच टू द क्लीनिंग ऑफ माउंटेन्स और रिवर्स इज स्टेप इन दिस डायरेक्शन। मतलब जो ब्यूटिफिकेशन, जो नेचर की ब्यूटी हमको दिखती है वो क्या है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू, उसको हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं ना, नमो गंगा प्रोजेक्ट क्या है, गंगा की सफाई के लिए, रिवर की सफाई के लिए, तो ये क्या है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू है। इथिकल वैल्यू, बाय इथिकल वैल्यू is meant the moral value attached to the human conduct and behavior concerned with the preservation of natural resources such as conservation of forest, animal life and water bodies and not overusing them। ethical value क्या है, कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मतलब जो भी मोरल वैल्यू, जो कि हम लोग जानते हैं कि हमको पानी ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी फ्यूचर में नहीं बचेगा तो हम लोग पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या है, हमको फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, ये सब क्या है, उसकी इथिकल वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू, रिसोर्सेज बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन हैव इकोनॉमिक वैल्यू। और बहुत सी रिसोर्सेज जो कि हम प्रोडक्शन और उसके लिए यूज़ करते हैं, उनकी खुद की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, थैंक यू।